We will start with the last practical that is left for the syllabus. Okay, that is to describe the procedure for isolation of microorganism, that is streak plate method. Okay, so first of all we will go with the introduction. So isolation is a procedure in which given species of organisms present in a sample or specimen is obtained in a pure culture. Okay, so in nature microorganisms normally grow in complex mixed populations containing several species. There will be several species of bacteria from various sources. Okay, hence in order to characterize and study a particular organism, it is essential to isolate them in pure forms. So Scroter in 1872, he observed that the growth of different types of bacteria in isolated colonies on slices of decaying potato. And Joseph Lister in 1878, for the first time, isolated bacteria in the pure culture by serial dilution in the liquid media. Robert Koch and his associates contributed to the development of the techniques for growing microorganisms on solid media. So various scholars have isolated the bacteria in various different forms. In solid also they have isolated, in liquid state also, that is solid media and liquid media. Okay, so with the help of that experiments they concluded that this kind of technique can be used to isolate the microorganisms. So the methods of pure culture. So isolation by plating media. There are three types: streak plate, pour plate and spread plate. Okay. So in our syllabus there is actually only streak plate. But the experiment that I have performed, in that I have shown all the three methods. In that I have shown the streak plate also, I have shown with the help of pour plate also, and I have shown the spread plate also. How can we isolate the microorganisms with the help of these three kind of techniques? Okay, so the principle is like that way. One sterilized wire loop or swab, it is charged with the appropriately diluted suspension of organisms and is then placed on the agar solidified surface of the nutrient medium at one end of the petri dish. The wire loop is then streaked across the surface of the agar plate. The inoculum is progressively diluted with each successive stroke, and as a result, a dilution gradient is established across the face of the plate. Hence, the confluent growth, that is, overlapping colonies, occur on the part where the bacterial cells are not sufficiently separated, while the isolated colonies develop on other region of the plate. Okay, there will be colonies which will be overlapping also, and there will be some colonies that will be isolated also. So theoretically, each discrete colony arises from a single bacterium and it represents a clone of pure culture. The isolated colony arises from a single bacterium and represents a clone of pure culture. The isolated colonies can then be picked using a sterile inoculating loop and restrict onto a fresh media to ensure the purity. Streaking we need to perform 2 to 3 times to obtain one single isolated colony. एक बार स्ट्रिक कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया. You need to streak 2 to 3 times. Okay, क्योंकि हमें isolated colonies चाहिए. We don't want colonies that are overlapping. Okay, so we will streak 2 to 3 times. See in the figure they have shown the streak plate. This is streaking. The plates that I have performed, I will show you the pictures of that also, so you will get an idea. So requirements is like that way. You need nutrient agar plate, you need nutrient agar slant, nichrome wire loop, and the mixed culture of the bacteria. If you are having any mixed cultures, okay.
So this is the procedure. First of all, I will show you the video, the photographs, and then we will read the procedure. Then you will get clear idea that what this procedure is trying to say. Okay. See, this is the incubator, bacteriological incubator. यहाँ पे मैंने प्लेट्स रखी थी आफ्टर स्ट्रिकिंग. ये यहाँ पे ऐसे लेफ्ट साइड में फोटो में आपको दिख रही है कॉलोनीज है, देखो नीचे की प्लेट में. सो ये आफ्टर स्ट्रिकिंग है, ये स्ट्रिकिंग के बाद की सिनेरियो है. पहले मैं वीडियो दिखाती हूँ फिर आपको ये फोटोग्राफ से क्लियर होगा. दिस इज द स्प्रेडिंग दैट आई हैव डन. तो उसमें ऐसी कॉलोनीज दिख रही है, तो ये कॉलोनीज है सारी, ये ओवरलैप हो रही है. ये अगर आप ऐसे जूम करके अगर आप देखें इसको, एक फोटोग्राफ्स को, सी ये ग्रोथ हुई है, मतलब दिस आर ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है ये. तो ये आपको दिख रहा है कि ये प्लेट में कितनी सारी कॉलोनीज है, एन नंबर ऑफ कॉलोनीज है. तो इसको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा. ठीक है, ये ओवरलैप हो रही है. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल वीडियो. पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से ये फोटोग्राफ्स को एनालाइज करते हैं. दिख रहा है आप लोगों को ये वीडियो? स्टूडेंट, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नॉट? यस, विजिबल. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना इसको. ओके. These are all the apparatus. See, these are the प्लेटरी प्लेट्स, मतलब हमने जो प्रिपेयर की थी और इसको ग्रोथ मतलब फॉर ग्रोइंग हमने इसको इंक्यूबेटर में रखा था. तो ये कॉलोनीज ग्रो हो गई है. ठीक है, ये पिपेट है, ये स्प्रेडिंग के लिए स्प्रेडिंग लूप है, ये निक्रोम वायर लूप है. ठीक है, ये सीरियल डाइल्यूशंस के लिए टेस्ट ट्यूब्स ली थी मैंने. ठीक है, कोर प्लेट में जब हम सीरियल डाइल्यूशंस करते हैं. ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लेट्स है, अगार प्लेट्स है जो उसी दिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमें करना रहता है इसको, अदरवाइज उसमें ग्रोथ नहीं आएगा. ठीक है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड 3 प्लेट्स है. ये सैंपल है. ठीक है, मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का सैंपल लिया था ताकि आपको ग्रोथ अच्छे से दिखे आप लोगों को. ठीक है, ये डिस्कार्डेड बीकर है और ये मेजरिंग सिलेंडर है. ये डिस्टिल्ड वाटर है. ये 10 ml मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया मेजरिंग सिलेंडर में. ठीक है, उसको मैं ये टेस्ट ट्यूब्स में इंसर्ट करूंगी.
अभी मैं टेस्ट ट्यूब को नेमिंग्स दूंगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स ना हो, इसलिए आई विल डू द नंबरिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है. See, I have done the numbering. That is 1, 2, 3. Okay. See, there are various ways. First of all, I will explain you. ये मैंने डायरेक्टली सैंपल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का लिया है. ठीक है. व्हाट कैन अदर, मतलब अदर ऑप्शंस क्या है. ये कॉलोनीज आपके प्लेट में मिल गई है. ठीक है. दो कॉलोनीज मतलब जो ग्रो हुई है यहाँ पे, ये प्लेट्स जो ली है उसमें, मतलब मैंने पीछे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले वो फोटोज दिखाया था कॉलोनीज वाला, तो वो कॉलोनीज भी आप पिक करके न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं जो लिक्विड मीडिया है, उसी को मतलब ऐसे ही ये टेस्ट ट्यूब्स है उसमें वो भी 10 ml न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. उसमें वो कॉलोनीज, मतलब एक कॉलोनी को पिक करके उसमें मिक्स कर सकते हैं एंड देन ऑल्सो वी कैन डू द सीरियल डाइल्यूशन. ये मैंने डायरेक्टली सैंपल लेके सीरियल डाइल्यूशन किया है. 10 ml मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया. ठीक है. अभी मैं सैंपल ले रही हूँ उसमें. ठीक है. ये 1 ml मैंने सैंपल लिया. ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने इसको डाला. ठीक है. अभी मैं उसको, सी वाई आई एम डूइंग दिस, आई एम मिक्सिंग द सैंपल, क्योंकि डिस्टिल वाटर है उसमें मैंने सैंपल डाला है, तो अभी उसको मिक्स करना पड़ेगा पहले. तो ये पिपेट से मैं ऐसे उसको 2-3 बार मिक्स करूंगी. ये माइक्रो पिपेट है. ठीक है. लिया, फिर वापस से उसको अंदर डाल दिया. वापस से 1 ml लिया, वापस से इसको अंदर डाल दिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. मेन मोटिव क्या है, अच्छे से वो सैंपल मिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है. अभी इसमें से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से मैंने 1 ml सैंपल निकाला. अभी मैं उसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करूंगी. इसको बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशंस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम थियोरेटिकल पार्ट देख रहे थे ये तब. ठीक है. तो ये प्रोसीजर को सीरियल डाइल्यूशन बोलते हैं. तो मैंने अभी उसको सेकेंड में डाल दिया है. देखो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम. ओके. तो वापस से उसको मैंने मिक्स किया. ठीक है. देखो उसमें से 1 ml लिया, वापस से उसको अंदर डाला ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. सैंपल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है. अभी उसमें से मैंने 1 ml लिया और उसमें थर्ड में डाला, थर्ड टेस्ट ट्यूब में. उसको भी मैं 1-2 बार मिक्स करूंगी. उसमें से 1 ml लिया, डिस्कार्ड वाले बीकर में डाल दिया, क्योंकि सारे टेस्ट ट्यूब में 9 ml ही होना चाहिए. ठीक है. इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्यूब में 9 ml है तो थर्ड में 10 ml. नहीं, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो अभी ये मैंने सीरियल डाइल्यूशन कंप्लीट किया. ठीक है. इसमें मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, इसमें से 4, 5, 6 आपको जितनी भी लेनी है एज पर द रिक्वायरमेंट. ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है. मतलब रिक्वायरमेंट भी आपको कैसे पता चलेगी, ग्रोथ के हिसाब से. आपको पहले तो 2 या 3 ही करना पड़ता है, फिर आप उसको इंक्यूबेटर में रखोगे, फिर आपको ग्रोथ दिखेगी. उसके हिसाब से आपको सोचना है कि अभी मुझे सीरियल डाइल्यूशन कितना करना है, किस अमाउंट में सैंपल डालना है, कितने ml डिस्टिल्ड वाटर में. ठीक है. अभी मैं ये पेट्री, मतलब ये जो पेट्री प्लेट्स है उसमें पीछे लिख दूंगी कि ये मैंने स्ट्रीकिंग का है ताकि कंफ्यूजन ना हो.
सी, ये स्ट्रिकिंग, स्ट्रिकिंग और ये स्प्रेडिंग, ऐसे मैंने लिख दिया है पेट्री प्लेट्स के पीछे। ठीक है, स्ट्रिकिंग, ये स्ट्रिकिंग और ये स्प्रेडिंग। ठीक है, एसपी मतलब स्प्रेडिंग किया है मैंने। अभी देखो ये ग्रोथ आपको दिख रही है, ये इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो है, ये ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ है पेट्री प्लेट्स में। इसी तरह फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमने बनाया था और इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया था, फिर 2 दिन के बाद ऐसी ग्रोथ आपको मिलेगी, मतलब यू विल सी दिस काइंड ऑफ ग्रोथ ऑन टू द प्लेट। ठीक है, अभी उसमें से ये निक्रोम वायर लूप है, उसको पहले रेड हॉट करना पड़ेगा। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया है वो हमारे रिजल्ट्स में एरर ना लाए, उसके लिए रेड हॉट करना पड़े, मतलब गर्म करना पड़ेगा उसको पहले, फिर ठंडा रखना है उसको 1 मिनट के लिए। ठीक है, उसको कूल भी होने देना है, ऐसा नहीं कि गर्म किया और वापस सीधा ही प्लेट में डाल दिया और कॉलोनीज ले ली, नहीं, तो जो कॉलोनीज जो प्लेट में प्रेजेंट होगी वो बैक्टीरियल कॉलोनीज है, तो वो मर जाएंगी। ठीक है, तो ये वायर लूप को पहले ठंडा होने देना है 1 मिनट के लिए, देन उसके बाद हम कॉलोनीज पिक करेंगे। जो आइसोलेटेड कॉलोनीज होंगी उसको हम टारगेट रखेंगे कि वो कॉलोनीज हम पिक करें। ठीक है, सी, ये जो मैं ऐसे लूप से ऐसे ऐसे कर रही हूँ उसको स्ट्रिकिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो, तो ये मैंने फर्स्ट प्लेट में से कॉलोनी ली और फिर एक प्लेट में उसको स्ट्रिक किया। ठीक है, प्लेट को पकड़ा, उसको एक साइड से किया, फिर रोटेट किया, मतलब ऐसे चारों साइड से मैंने उसमें स्ट्रिकिंग की, तब जाके हमें ग्रोथ मिलेगी। ऐसे ही नहीं कि एक साइड कर दिया तो खत्म हो गया, नहीं, वी नीड टू डू दैट ऑन ऑल द 4 साइड्स, ऐसे ऐसे करके हमें स्ट्रिक करना है। और ये स्ट्रिकिंग जब हम कर रहे हैं तो उसको एकदम, क्या मैं बोल सकती हूँ, मतलब एकदम केयर के साथ करना पड़ता है, क्योंकि जो मीडिया है वो एकदम से हम ज़्यादा उसमें वो करेंगे तो वो मीडिया खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने इसको रेड हॉट किया, ताकि मैंने जो उसमें से कॉलोनी पिक की उसमें बैक्टीरिया है, तो भी उसको मरना होगा पहले, तभी हम दूसरे बैक्टीरिया को कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद भी मैंने ये रेड हॉट किया है ये लूप को, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। ठीक है, फिर उसको ठंडा होने देना 1 मिनट के लिए। देखो, अभी मैंने दूसरी प्लेट से कॉलोनीज पिक की है। पिक करना है मतलब उसको ऐसे उखा, मतलब जड़ से उखाड़ नहीं देना है उसको, सिर्फ ऐसे माइन्यूट ऐसे करके लेना है, तभी भी वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे ज्यादा वजन दोगे तो वो टूट जाएगा, मतलब जो मीडिया है वही ब्रेक हो जाएगा। तो कम वजन के साथ एकदम से उसको लेना है और फिर वापस से स्ट्रिक करना है। देखो,
ये खोला और फिर ऐसे ऐसे किया, मैंने एक साइड किया, फिर ये दूसरी साइड, ठीक है, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड, फिर उसको ऐसे बीच में ऐसे कर दिया, ठीक है। वापस से रेड हॉट में उसको करना है ताकि जो कॉलोनीज पिक की वो मर जाए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये स्ट्रिकिंग खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, सो ये फर्स्ट जो स्टेज था वो हमारा खत्म हो गया, मतलब स्ट्रिकिंग हमने कंप्लीट कर दिया है, कॉलोनीज को पिक किया और फिर डायरेक्टली फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीडिया में ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये स्ट्रिकिंग कंप्लीट हो गया। अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं जो कर रही हूँ वो पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट है, ठीक है। ये जो सीरियल डाइल्यूशन हमने बनाया था उसकी मदद से, ओके, पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट, ठीक है। यहाँ से मैंने सैंपल लिया फर्स्ट वाली उसमें से, ठीक है। मैंने अभी 3 ही प्लेट्स की थी इसलिए, वरना आपको क्या करना है, आपको सेकंड में से भी लेना है और थर्ड में से भी लेना है, ओके। पर ये तो मैंने सिखाने के लिए सिर्फ फर्स्ट में से ही लिया था और एक ही प्लेट मैंने मीडिया बनाया था, पर व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टेस्ट में से एक एक ml लेना है प्लेट में, बैटरी प्लेट्स में, ठीक है। देखो अभी ये मैंने माइक्रो पिपेट से उसको सैंपल को ये प्लेट्स में डाल दिया। अभी देखो ये प्लेट में सैंपल आ गया है, मैंने माइक्रो पिपेट से सैंपल डाल दिया। अभी मैं जैसे ऐसे ऐसे करूंगी जब हाथ से, तो ये पोर प्लेट हो गई कि मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, सैंपल को अपने आप ही मौका दे रही हूँ ताकि वो स्प्रेड हो जाए, ठीक है। और जब मैं ये यूज कर रही हूँ, ये स्प्रेडिंग लूप बोलते हैं इसको, तो ये स्प्रेडिंग हो गए, सैंपल मतलब 1 ml जो हमने डाला उसको स्प्रेड करना पड़ेगा ना, तो दिस इज द टेक्निक, मतलब ऐसे हम उसको स्प्रेड करेंगे। ये स्प्रेडिंग में टाइम लगता है क्योंकि हमने 1 ml सैंपल डाला है, ठीक है, तो 1 ml बहुत ज्यादा है ये प्लेट के हिसाब से, तो उसको अच्छे से स्प्रेड करना रहता है। कोई भी मतलब ऐसे पोर्शन बच गया तो वहां पे चांसेस है कि आपके एरर आ सकते हैं, ठीक है, तो एकदम अच्छे से उसको स्प्रेड करना है। ठीक है, तो ये स्प्रेडिंग कंप्लीट हो गया है, फिर मैंने इसको इंक्यूबेटर में रख दिया है। ये तीनों के तीनों प्लेट्स को मैंने इंक्यूबेटर में रखा है फॉर 48 आवर्स। आफ्टर 48 आवर्स हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि स्प्रेड प्लेट में से कैसा आया और स्ट्रिक में से उसकी कैसी ग्रोथ आई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और अगर आपको फिर से देखना है, कोई है कि नहीं है स्टूडेंट्स?
समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? चैट बॉक्स में क्यों लिखे हुए, बोलो ना समझ में आया कि नहीं आया? वापस से देखना है आप लोगों को। मैम एक बार दिखाओ ना फिर से कर। ओके ठीक है, तो मैं वापस से वो दिखा रही हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा, कैन यू रिपीट? बस एक बार रिपीट कर दो ना, प्रैक्टिस करिए। हाँ ठीक है। ओके, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। एक्सपेरिमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो स्ट्रिकिंग, स्प्रेडिंग एंड पोरिंग। ठीक है, पहले स्ट्रिक किया है सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर करके, उसमें से हम स्ट्रिकिंग कर रहे हैं, फिर विद द हेल्प स्प्रेडिंग कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सीरियल डाइल्यूशन हमने उसको स्प्रेड किया। ये सारा काम लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप ऑटोक्लेव से सब कुछ बाहर निकाल रहे हो तो डायरेक्टली उसको ऑटोक्लेव में, मतलब सॉरी ऑटोक्लेव में नहीं, डायरेक्टली उसको लेमिनार एयर फ्लो में ही रखना है। ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो को सबसे पहले यूवी देना है हाफ एन आवर, उसके बाद ही हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर्स इन अवर एक्सपेरिमेंट्स। ये आप लोग देख रहे हो कि कितनी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 1 या 2 दिन में तो इसका ग्रोथ आता है। तो अगर आपको फिर से ये रिपीट करना पड़ा तो आप समझ लीजिए कि फिर से सारी प्रोसेस करो और फिर से 2 दिन की राह देखो। तो उससे अच्छा है कि जो भी करो वो ध्यान से करो, प्लानिंग के साथ करो, और जो भी स्टेप्स है वो आपके माइंड में होने चाहिए कि नहीं इसके बाद ये करना है, ये करना है, ताकि आपके रिजल्ट्स में कुछ एरर ना आए। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी में एरर आना मतलब फिर से पूरा रिपीट करना, और वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। सब कुछ ऑटोक्लेव करना पड़ता है एंड देन यू नीड टू यूज दैट। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस एरर्स के जो रहते हैं वो इसी में रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। पर एक बार आपको अच्छे से उसका आ गया तो देन ठीक है, यू कैन परफॉर्म दैट इजीली।
રહેવા દેવાનું છે. રાખો ને. હા રાખી દો. હા રહેવા દેવાનું છે. પછી રહી છે આ બાજુ એટલે એક તો અંદર ધરાય બી કેમ છે. ઠીક છે. तो स्टूडेंट्स आपने फिर से देखा है, कुछ भी डाउट्स है इसमें? नो मैम. ठीक है, तो ये था स्ट्रिकिंग, स्प्रेडिंग एंड पोरिंग।
ठीक है, अभी मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ कि जो जब हमने उसको इंक्यूबेटर में रखा तो उसके बाद कैसी ग्रोथ आई। एक मिनट। करना है ऐसे तो मैं निकाल के देखो ये इंक्यूबेटर में रखा था मैंने, ठीक है। ये स्ट्रिकिंग का है, हमने जो दो प्लेट्स को स्ट्रिक किया उसको आफ्टर 48 आवर्स। सी ये लाइंस आपको दिख रही है ऐसे, देखो अभी इसमें ना इतनी कॉलोनीज नहीं आई, मतलब जब हम पहली बार इसको स्ट्रिक करेंगे हार्डली 3 to 4 कॉलोनीज विल कम, ठीक है। तो ये कॉलोनीज देखो इधर है ये एक, फिर इसमें अगर देखें तो इसमें भी एक है, ये वाली ये साइड पे, ठीक है। तो अभी इसको वापस से ये कॉलोनी को पिक करना है, इसमें से ये और इसमें से ये कॉलोनी को पिक करना है और वापस से उसको स्ट्रिक करना है। 2 to 3 टाइम्स इसको स्ट्रिक करना है, तब जाके हमें एक अच्छी वाली स्ट्रिकिंग से अच्छी वाली मतलब आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलेगी। देन उसको हम ऐसे आइसोलेशन की टेक्निक से सेपरेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई भी करना है अंडर माइक्रोस्कोप की क्या है, कौन से बैक्टीरिया है ये, ठीक है। तो वो एक पूरी एक अलग ही प्रोसेस है, पर हमें क्या करना है इस स्टेज पे स्ट्रिकिंग करना है। तो वापस से इसको ये करना है और वापस से स्ट्रिक करना है, और ये है स्प्रेडिंग। जब हमने सैंपल को लिया और विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडिंग लूप हमने उसको स्प्रेड किया तो देखो कितनी सारी कॉलोनीज मिली आप लोगों को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि अगर आप स्ट्रिक कर रहे हो तो आपको 2 to 3 कॉलोनीज मिलेगी, और अगर आप स्प्रेडिंग से कर रहे हो तो देखो आपके चांसेस कितने ज्यादा है कॉलोनीज के। इसमें से कितनी अलग अलग कॉलोनीज है, देखो कोई एकदम डार्क येलो कलर की है तो कोई वाइट कलर की है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज है इसका मतलब इसमें। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर था उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, ठीक है। वापस से इसमें से कोई भी कॉलोनी को जो आइसोलेटेड कॉलोनीज है, जो एकदम यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में आपको ऐसे इंडिविजुअल कॉलोनीज दिखती है जैसे कि ये है, उसको वापस से लेना है और वापस से उसको स्प्रेड करना है या स्ट्रिक करना है, ठीक है। इसमें से कॉलोनीज ली और आपको आप स्ट्रिक भी कर सकते हो और आप स्प्रेड भी कर सकते हो, वो आपके मतलब डिपेंड्स ऑन यू विच प्रोसीजर एंड व्हाट टू फॉलो, ओके। सो ये स्प्रेडिंग है। So it was about streaking, spreading and pouring. Now we will see the procedure. Sterilize a nichrome wire loop by flaming it in Bunsen burner's flame. जैसे हमने वो sterilize किया था. Allow the wire loop to cool. Withdraw a loop full of suspension from the mixed culture. हमने लिया. Streak the nutrient agar plate in a manner so as to get well isolated colonies. Streak करना है. Incubate the plate at 37 degrees Celsius in an inverted position for 24 hours. ये डिपेंड करता है कि कौन सा सैंपल है, क्योंकि ज़्यादातर आपको 24 आवर्स में ग्रोथ आ जाएगी, अगर नहीं आई तो वापस से उसको रखना है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी टोटल 48 आवर्स के लिए उसको रखना है। आफ्टर इंक्यूबेशन वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज शुड अपीयर ऑन द प्लेट, जैसे हमें यहाँ पे मिली, मतलब वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलनी चाहिए। सिलेक्ट वेल आइसोलेटेड कॉलोनी ऑफ ईच स्पीसीज एंड नोट डाउन देयर कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसकी नोट करनी है कि ये ऐसे दिख रही है, इस कलर की है, ऐसे करके। पिक अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल वायर लूप एंड emulsify them in little amount of sterile distilled water. Prepare the smear from each of the suspension and perform gram staining. ये जैसे कॉलोनीज आई उसको हमने डिस्टिल वाटर में से रखना है, और जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग का प्रैक्टिकल देखा
स्लैंट में जैसे हमने वो कॉलोनीज ली थी और फिर उसके बाद हमने जो एक के बाद एक रिएजेंट्स डाले थे, उस हिसाब से उसको ग्राम स्टेनिंग करना है। ठीक है, एग्जामिन द स्टेन smear to check the purity of the suspension. The smear should show only one type of bacteria. तो कॉलोनीज हम रह रहे हैं उसमें एक ही टाइप का बैक्टीरिया आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बार बार आप स्ट्रिक करोगे, स्प्रेड करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये कॉलोनी यही है। देन यू नीड टू पिक दैट एंड उसको ग्राम स्टेनिंग करना है। If the slide does not show pure culture, continue to examine well isolated colony until a pure culture is confirmed. मतलब आपको जो कॉलोनी मतलब वो चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको बार बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। If the gram staining confirms the purity of the suspension, streak a loopful of suspension on the nutrient agar slant. Incubate the slant at 37 degree for 24 hours. And next day examine the slant for the growth of organisms. Slant should show the colonies of single type. मतलब वो स्लैंट में वही प्रोसेस करनी है, पर उसमें अभी क्या करना है, अभी उसमें न्यूट्रिएंट आकार रखना है और उसमें वो कॉलोनी को पिक करके स्मीयर बनाना है, जैसे हमने बनाया था। स्मीयर मतलब ऐसे रखना है, सिर्फ उसको कॉलोनीज को पिक करके करना है। If the purity of the slant is verified, it indicates that the organism has been isolated in pure form from the mixture and the slant is preserved in refrigerator for future use. अगर आपको वो स्लैंट से अच्छी कॉलोनीज मिल गई, आइसोलेटेड कॉलोनीज, ठीक है, देन आपको मतलब इट इज देन कंफर्म्ड कि ये जो कॉलोनी है ये यही बैक्टीरिया है। तो अगर आपको फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो यूज करना है तो वो आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो एंड देन यू कैन यूज। ठीक है, सो ये था स्ट्रिकिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The conclusion is like that way. A streaking of inoculum is done on solid nutrient medium and the growth of microorganism is observed after the incubation period. ठीक है, स्ट्रिक कर लिया, उसके बाद उसको रखा एंड देन यू विल ऑब्जर्व द ग्रोथ। ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमने ग्रोथ ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये स्ट्रिकिंग का था और ये स्प्रेडिंग का था। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? स्टूडेंट्स Students, have you understood the whole practical? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.